Welcome back. We were doing the chapter Gender, Religion and Caste. We have completed the chapter along with NCERT in the theoretical process. Now I'm going to take up all the pictorial or the graphical representations given in the chapter, which can help you out in your exams, right? When you take up the chapter, so you have 2 or 3 pictorial presentations in the chapter, which can be there as a 1 marker question or it may be a 3-4 marker question जैसा भी हो सकता. Now this very first one, ये जो पहला हमने देखा है, this is a poster which affirms the women's strength. मतलब what does it mean? You can see that the woman is so strong that she can balance among different things. She is strong enough to balance the difficult task. यहाँ पर जो पत्थर है, they are referred to the difficult task and she is able to easily, मतलब एक तरफ आप देख सकते हो घर पीछे दिख रहा है, so she is having the strength to balance between the two. The second one, if you see, ये है हम एक आइडियल वुमेन किसको बोलते हैं, मतलब सबके लिए, इट इज फॉर एवरीवन इवन टिल डेट. मतलब कभी कभी तो इवन आई फील सो अशेम की बीइंग इन 2024 फॉर अस व्हाट इज द definition of an ideal woman. Actually there is nothing like ideal. Even if I'm a good cook, if I'm a good teacher, I'm a good mother, I can be a poor, I can be, लेकिन हम नहीं मानते. For the TV serial makers, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर लिखा है द टीवी सीरियल मेकर्स के लिए औरतें ही आइडियल व्यूवर्स होती हैं. एंड इफ यू सी द number of shows, you can see all kinds of, something which doesn't have any relevance, these are shown. उनके लिए that is ideal. For the fashion industry, the ideal beauty is when you are very thin. यहाँ पर अगर आप देखो तो she is very thin. मतलब अगर आप मोटे हो तो आप, मतलब कि you are not ideal. हमने परसेप्शन बना दिया है, हमने परसेप्शन बना दिया है. For the prospective in-laws, शादी करनी है तो भाई जो लड़की खूब सारा दहेज लेकर आएगी वो आइडियल बहू है. For the employer and employees, what does it mean? यहाँ पर जो है ये फूलों का जो मतलब वो लिखा हुआ है, तो it means only a decorative piece without any value. मतलब जो मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके लिए होता है, you are only, you don't need to take any key roles. And for the society in whole, आप देखो there are so many, और ये वाली जो पिक्चर है, this has come in the exam. ये वाली जो पिक्चर है, this has come in the exam. मतलब झाड़ू भी, बर्तन भी, बेलन भी, बुक्स भी, मतलब एक आइडियल औरत वही है जो सारे काम कर सकती. एक हाथ में बाल्टी भी है, मतलब कि दूसरे हाथ में चक्कू, शी कैन डू एवरीथिंग. बट when it comes to the what you call as respect, education, then what happens? It is down. So we believe that women are made to work. They have been born to work in the household.
अब ये आपका जो नेक्स्ट है वो है कि एक एवरेज वुमेन जो है, she works every day for a little over 7.5 hours while an average man works for 6.5 hours. But the work done by men is more visible because उससे पैसा आता है. Women also do a lot of direct incoming generating, but bulk of their house मतलब work is household, और इसीलिए it is invisible. तो ये आपका जो टेबल बना हुआ है, इफ इट कम्स फॉर कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपको क्वेश्चन, तो इट सेज नाउ हाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन से. इनकम जनरेटिंग में मेन आपके 6 मतलब की है आवर्स, इट इज इन दी डेली टाइम यूजिंग, वेर एज विमेन जो है वो 2.40, यानी कि द नंबर ऑफ आवर्स. हाउसहोल्ड एंड मतलब कि रिलेटेड वर्क में द विमेन नॉर्मली वर्क फॉर मोर देन 5 hours, वेर एज मेन 0.30, आधा घंटा. टॉकिंग एंड गॉसिप में मेन आर मोर. नो वर्क ओनली लेजर, दोनों का तकरीबन सेम. सेल्फ केयर रीडिंग वगैरह में मेन थोड़े ज्यादा एंड विमेन कम. व्हाट डज इट शो इज कि ओवरऑल जो लेडीज होती हैं दे आर मोर into the household work where they hardly have time for themselves. So it shows the society's patriarchal form. ये लिखा है ना patriarchy, ये पेपर में आता है. ये जितने भी आपके ग्लॉसरीज हैं, these are all part of your exams also. Patriarchy मतलब where the men or father figure has more power. अब ये है आपका the नंबर ऑफ गर्ल्स, जो कि अब यहां पर आप देख सकते हो द क्वेश्चंस आर गिवन. कैन यू आइडेंटिफाई योर स्टेट, व्हाट इज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इट, दैट यू कैन डू इट. आइडेंटिफाई द स्टेट्स विच हैव चाइल्ड सेक्स रेशियो बिलो 900, ये आपका क्वेश्चन है. आपको इसमें नाम लिखना होगा एंड देन यू हैव टू टेल व्हाट इज द, और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं. नाउ अगर हम लोग ओवरऑल फिगर देखते हैं ना क्लास 10, इवन मेट्रो सिटीज, मेट्रो सिटीज होती हैं जहां आपके पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं, इवन इन मेट्रो सिटीज द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज वेरी डिस्पैरिड, मतलब मेल मेंबर्स को ज्यादा मिलता है प्रिविलेज. नाउ ये जो पिंकिश है इट इज 951 एंड अबाउट. 926 to 950 आपका ग्रीनिश है. 901 to 925 आपका थोड़ा मस्टर्ड. Then 876 is yellowish and below 875. Now let us come to the one. We are only talking about India. तो अगर हम लोग पिंकिश देखते हैं तो फर्स्ट इज केरला, देन आपका ये छत्तीसगढ़, देन आपका वेस्ट बंगाल, देन आपके सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. यहां पर आपके जो चाइल्ड रेशियो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है. एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो, दिस इज ट्रू ऑल्सो. यहां पर यू विल हार्डली फाइंड पीपल प्रैक्टिसिंग दी इन फीमेल इनफैंटिसाइड और लाइक दैट, या फिर बेटी पैदा हुई ऐसा आंसू बहाते नहीं. Now comes the green. Overall, they are also good. It is आपका again southern states, आपका कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना also now, ओडिशा, बिहार, झारखंड एंड यहां पर आपका मणिपुर. Again the north east and southern states are good. यहां पर तो कम है ही नहीं, all are above. Now comes the mustard color 90129, that is Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, then आपका दिल्ली, then आपका हिमाचल. यहाँ पे fairly it is good, fairly.
एंड बिलो में आपके आ जाते हैं द वेरी लाइटिश कलर पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर आपका, देन आपके जो है, तो दीज एरियाज आर व्हेन यू कैन सी, सॉरी इसके नेक्स्ट आता सारे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यानी कि यहाँ पर भी आपके चाइल्ड डिस्पैरिटी, सेक्स रेशियो डिस्पैरिटी है, एंड बहुत ही ज्यादा है वो आपका पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। तो व्हेन इन योर एग्जाम इफ इट कम्स यू हैव टू आइडेंटिफाई, सबसे लोएस्ट आपके ये वाला है और सबसे हाईएस्ट आपका ये वाला। तो यू कैन सी केरला, इट हैज गॉट द हाईएस्ट वन। तो व्हाट हैपेंस इज, दिस इज अगेन व्हाई बिलो 900 कौन कौन से आपके, सम ऑफ द स्टेट्स जो आपके लाइट येलो कलर, एंड जो आपका बिलो 875 है वो आपके जम्मू कश्मीर पंजाब वाला है। तो यू मे बी आस्क्ड विच इज द हाईएस्ट वन, या फिर यू मे बी गिवन द फिगर एंड आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा सकता है दो स्टेट्स का नाम बताओ, देन आपसे उसका रीजन पूछा जा सकता है, रीजन पूछा जा सकता है। और रीजन ये होता है कि फीमेल्स आर कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी, दे आर कंसिडर्ड दैट कि भाई उनके लिए हमें पढ़ाना लिखाना, उनको डाउरी देना, इसीलिए मोस्ट ऑफ, एंड देन इट इज ऑल्सो बिलीव दैट द मेल मेंबर इज गोइंग टू टेक द लेजेसी ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली का वो वारिस होता है। और इसकी वजह से ऐसे हमारे जो मिथ्स हैं उसकी वजह से द सेक्स रेशियो इन आवर कंट्री इज वेरी डिस्पेयर, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड। I know people having these kinds of, and I really feel very bad for them. Being a woman myself, I never would support this, and I'm strongly female. मैं strongly feminist. I believe everyone is equal in every category. Next is women in national parliaments in different regions of the world. ये है आपका डिफरेंट रीजन्स। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, कुड यू थिंक सम ऑफ द रीजंस व्हाई विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इज सो लो? भाई जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, घर से बाहर नहीं निकलेंगे, उनको ये बोला जाता कि तुम पैदा ही हुई खाना बनेगी, तो वो कहां से पॉलिटिक्स में आ जाएंगे? Do you think Americans and Europe have achieved a satisfactory level? So we cannot say. The Scandinavian countries are more. मतलब वहां पर you can see the number of women in them. Now let us come to the figures. The Nordic countries इनका highest है 42.3%. ये percentage याद रखना. And this can be, ये हमारा नया वाला है. This is a new data 2024-25 की बुक के अकॉर्डिंग है, तो इसीलिए this can be relied. Then America 29.5. It's only 29.5. It's not very high. So यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ना, do you think Americans and Europe have achieved a satisfactory level? तो no, you cannot call them satisfactory. 29% आपका होता क्या है? देन यूरोप, यूरोप के अंदर आपका एंटायर यूरोप विल कम, वेस्ट ईस्ट दोनों मिलके, तो इट्स अराउंड 26.4. देन सब सहारन कंट्रीज 23.7, एशिया 19.8. These are the Nordic countries, right? Then Arab states 18.6. वहां तो आप कह सकते हो अरब जो है यूएई, दैट इज द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. Then Pacific 15, but India the lowest, which is 11.8.
8. Why it is there? Why? And the reason is that females in India are often taken as जो gender disparity है, जो हमारा historical context है, that females are born to be, housemakers. इसी वजह से एजुकेशन, लिटरेसी लेवल, ये सारे रीजंस होते हैं आपके फीमेल रिप्रेजेंटेशन. सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम. दिस इज द सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी. सोशल आपके हो गए व्हाट वी कॉल एज, जिसको हम बोलते हैं कास्ट, एंड रिलीजन और रिलीजन. So there are different kinds of people who might be a Hindu, a Muslim, a Buddhist, a Sikh, or an atheist. What is the meaning of atheist? Atheist is आपका a person who doesn't believe in any religion. One marker question. Right? It's a one marker question. Means there are some people who don't believe in any kind of religion. They don't pray to any god. It's not, एक होता है those who do not believe, और एक होता है those who do not pray anywhere. मतलब they may be saying I am Hindu but I'm not, मतलब कि trust, I don't trust God. वो एक अलग है. Atheist होता who doesn't believe in any God. तो this is the pie chart. ये आपका जो है pie chart है, which is determining the population of different religious communities in India. So according to that अगर हम देखते हैं तो the maximum population हमारे यहाँ पर जो है वो है Hindus, then Muslims 14.2, then we have Christians 2.3, 1.7 is आपका Sikh, and जो black color लिखा है उसमें अलग अलग तरीके के लोग हैं which we call as Buddhist, Jain, other religion. and ये जो लोग हैं इनको हम लोग मतलब कि दे आर ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज. दे आर कॉल्ड एज रिलीजियस माइनॉरिटीज. इनको हम लोग रिलीजियस माइनॉरिटीज में लेकर, राइट. द नेक्स्ट इज द सोशल डाइवर्सिटी. और सोशल डाइवर्सिटी हमारा कौन सा होता है? व्हेन वी से शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, ये हमारे बेसिक है. देन आपके मतलब जो शेड्यूल कास्ट थे पहले इनको दलित आउटकास्ट बोला जाता था. दे वर द वन हु वर सब्जेक्टेड टू अनटचेबिलिटी. एंड शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं दे आर एक्चुअली द आदिवासी. दे आर नॉट एक्चुअली, उनको शेड्यूल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है कंपैरेटिवली वो कम है, एंड दे नॉर्मली लिव इन द हिल्स, फॉरेस्ट, एंड दे आर नॉट दैट मच इंटरैक्टिंग विद द सोसाइटी. इसलिए उनको हमने शेड्यूल यानी कि उनको एक अलग सा होते. इसमें क्या मतलब कि व्हाट इज अ होता है, द गवर्नमेंट गिव स्पेशल प्रिविलेजेस. हमने फॉरेस्ट सोसाइटी एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था ये जो ट्राइबल्स होते हैं दे आर द वन हु हेल्प द गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द फॉरेस्ट एंड ऑल, क्योंकि ये लोग वहीं रहना पसंद करते हैं एंड दे want to be secluded. इनकी अपनी बिलीफ होती है. एंड शेड्यूल्ड कास्ट आपके वो पुराने आपके दलित या अनटचेबल्स हैं, दोज हु आर नॉट अलाउड टू बी टू मिंगल विद द कॉमन पीपल. तो दिस इज आपका व्हेन वी से सोशल डाइवर्सिटी तो ये है, एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी मतलब आपका ये है, दैट इज आपका हिंदू मुस्लिम. तो हिंदू हमारे ज्यादा, फिर मुस्लिम, और बाकी हमारे सारे जो है वो माइनॉरिटीज में आते. नाउ व्हाट इज दिस कास्ट इनइक्वालिटी? हम लोगों ने कास्ट में दो क्वेश्चंस पढ़े थे. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि कास्ट हैज disappeared from the Indian society because of the urbanization, because of the occupational mobility. ये देखिए ये है urbanization मतलब moving from the rural areas to urban areas. occupational mobility मतलब पहले जो लोग maybe a person was a cobbler,
but today we may not be knowing that person's children might be working in some MNCs. तो जो ऑक्यूपेशन के चेंजेस आए हैं उनकी वजह से. तो देर आर टू क्वेश्चंस. वन इज कास्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एंड सेकेंड इज इट हैज नॉट कंप्लीटली डिसअपियर. तो ये जो है आपका है, caste is an important source of economic inequality because it regulates access to resources of various kinds. जैसे पहले the untouchable were denied to right to own their life, and while only the so-called twice born caste had the right to education, although this kind of explicit and formalized inequality based on caste is now outlawed, बट अभी भी वो जो उनका उसका जो असर है वो अभी भी है. एंड नाउ न्यू काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज हैव डेवलप. आपने जब लास्ट में पढ़ा था इसमें, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो कास्ट और इकोनॉमिक्स है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन इज देयर. व्हाट इज द रिलेशन? तो द रिलेशन इज, टुडे इट इज पॉसिबल टू फाइंड वेरी रिच एंड वेरी पुअर इन एवरी कास्ट. This was not true even 20 or 30 years back. It was very rare in India to find rich people among the lower caste. However, अभी जो NSSO है उसके according, even now caste continues to be very strongly linked to economic status. The average economic status of caste groups still follows the old hierarchy. That is, the upper caste are best off, the lower Dalits are worst off. Although every caste has some poor member, the proportion living below poverty जो है वो उन्हीं में है जो लोग लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, एंड नॉट फॉर. तो ये अभी भी वो चीजें हैं. तो ये आपका जो एक बना है डेटा, यहाँ पर अपर कास्ट मींस नॉट फ्रॉम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी. So what it shows is percentage of people living below poverty line. Scheduled caste आपके आज भी सबसे highest, 45.8 in the rural and 35.6 in the urban. Sorry, scheduled tribes. And scheduled caste 35.9 and 38.3. यानी कि अर्बन में अगर हम देखते हैं तो शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो ज्यादा पुअर है, एंड अगर हम रूरल में देखते हैं तो शेड्यूल्ड ट्राइब आपके ज्यादा पुअर है. मतलब दीज आर द कंपैरिजन क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट, राइट. देन ओबीसी अगेन आपके अर्बन में दे आर मोर पुअर, 29.5%. मतलब आपसे पूछा जा सकता है विच आपके पुअर है. देन मुस्लिम अपर कास्ट रूरल में कम, अगेन अर्बन में ज्यादा. हिंदू अपर कास्ट, क्रिश्चियन अपर कास्ट, सिख में ओनली इन द अर्बन द पीपल आर पुअर, इन रूरल एरियाज इट इज नॉट. देन अदर एंड ऑल ग्रुप्स. तो इफ यू सी दैट व्हाट डिस्पैरिटी, मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है एक कास्ट का नाम देकर कि उनका अर्बन और रूरल का कंपोजिशन बताओ, या फिर ओवरऑल में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा कास्ट है जो सबसे ज्यादा रूरल में पुअर है और जो सबसे ज्यादा अर्बन में पुअर है. तो इफ यू सी 45.8 इज शेड्यूल्ड ट्राइब एंड 38.3 इज आपका शेड्यूल्ड कास्ट इन अर्बन. तो अर्बन में शेड्यूल्ड कास्ट ज्यादा पुअर है एंड रूरल में शेड्यूल्ड ट्राइब ज्यादा पुअर है. दिस इज द कंपैरिजन. Right? BPL is below poverty line. Then this is the cartoon. What it shows? It is showing the caste. आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ राजपूत, कुर्मी, गुज्जर, मतलब दे आर ऑल बिलोंगिंग टू द बैकवर्ड क्लासेस. तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ऐसे नाम दिए हुए हैं. एंड व्हाट दे से इज, ये जो पॉलिटिशियंस हैं
ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ये सारे पॉलिटिशियंस हैं, दे आर ऑल ट्राइंग टू सेव इट, दे आर ऑल ट्राइंग टू ओपन इट। मुस्लिम्स का देखो ओपन कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को वो लोग ओपन कर रहे हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, रिलीजियस आपके, दे वांट टू वोट अप, मतलब वो उनको बैंक ऑन करना चाहते हैं, मतलब वो लोग उन उन स्पेसिफिक सोशल ग्रुप को अपना टारगेट बनाना चाहते हैं, अपना जो है बाय प्रॉमिसिंग देम उनके वोट्स लेना चाहते हैं, दे वांट टू टेक। एक्चुअली ये जो फोटो है दिस इज ऑफ विश्वनाथ प्रताप सिंह, दिस इज वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ही वाज वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चंद्रशेखर है यहाँ पर। तो दे वांट टू शो दैट बाय, डू यू थिंक पॉलिटिकल लीडर्स आर राइट टू ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू कास्ट एज वोट बैंक्स? So normally, what is vote bank? They target those people from a particular caste to get the vote. वो उनको, इसीलिए उनको हम वोट बैंक बोलते हैं। So these were some of the important questions from this chapter that tells you that may come in the exam, maybe a one marker question or an interpretation, पूरा आपको देके 2 या 3 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाए। तो दिस इज व्हाट वी कैन से जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट।